Assalamu alaikum and welcome to mathematics class for standard 6th, chapter 8 decimals part 6. What you are going to learn from this video? After watching the video, students, you will be able to compare between ones, tenth, hundredth and thousandth values in decimal digits. You will be able to identify the greaters and the smaller ones or the equal ones in the decimal digits. So let's begin with exercise 8.3's first question. In 8.3, two questions are there, in which one is to compare and second one is for the making of examples of your own choice. So students, we will be doing only question 1 and second one will be an additional question which we shall see when you are going to join the school. Okay, so let's begin with first questions. In these questions, you have A to J, all the questions. Total 10 sub questions from question 1. I am going to explain you from A to H. I and J will be homework for you. So keep in mind that these two questions you are going to solve by yourself. Let's begin. First of all, let us get explained. Let us get clear with the concept. Okay students, now listen. I had actually already explained about the place value table. Right. Now in this place value table, this is the place where we put the point or decimal. Towards the right side, there is the first value of tenth. Then it is the value of hundredth. And then there is the value of thousandth. And toward the right side of decimal, where ones, tens and hundreds place value are there. So if you are going to move from right to left, the digits or the place values becomes greater and greater. That means 1000 is the smallest one. Thousands से बड़ा हंड्रेड की वैल्यू होगी, यानी ये थाउजेंथ वैल्यू है 1/1000 वाली. 1/1000 से बड़ा होगा 1/100. 1/100 से बड़ा होगा 1/10. 1/10 से बड़ा होगा वंस. वंस से बड़ा होगा टेंस और टेंस से बड़ा होगा 100, 1000, 10,000 and so on. But in this we are going to see till 100. अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल यानी ऑपोजिट सोचें, दैट मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स द राइट, अगर आपकी वैल्यूज बढ़ रही हो, देन दे गो ऑन बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. यानी 100 से छोटा टेंस, टेंस से छोटा वंस, वंस से छोटा टेंथ, टेंथ यानी 1/10, 1/10 से स्मॉलर 1/100 और 1/100 से स्मॉलर 1/1000. You have to keep this explanation in your mind very clear, so that while comparison is going on, you won't make any mistake. Let's move on with the first question A. 0.3 and 0.4 are compared. हमें इन दोनों में बड़ा कौन सा है उसे कंपेयर करना है. कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले आप हमेशा याद रखिए कि हम इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में पहले ले आते हैं, यानी डेसिमल निकाल दीजिए. So how we take out the decimal? By putting tens or hundreds or thousands below in the denominator. So come on, let's do it. 0.3 is nothing but 3/10 and or 0.4 is 4/10. अब अगर डिनोमिनेटर के 10th सेम हैं, यानी ये एक ही कॉलम के नंबर्स हैं,
तब हम अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर के डिजिट्स को ही खाली कंपेयर करेंगे कि 3 ग्रेटर है या 4। करेक्ट, 4 ग्रेटर है। इसका मतलब ये पूरा फ्रैक्शन ही ग्रेटर होगा, यानी 3/10 इज लेस देन 4/10। तो ग्रेटर कौन हुआ? 4/10 और लेसर कौन हुआ? 3/10। ओके, अब 3/10 का डेसिमल डिजिट क्या था? 0.3। और 4/10 को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे कि वो अर्लियर था क्वेश्चन में, 0.4। अगर फ्रैक्शंस को हमने कंपेयर कर लिया हो तो सेम साइन हो जाती है इनकी भी, यानी 0.4 इज ग्रेटर देन 0.3। अंडरस्टूड? सो नाउ दिस इज आवर फाइनल आंसर. We'll move on to question B. Question B is 0.07 or 0.02. Let us first convert these decimals into fractions. So 7/100 हो जाएगा because decimal के बाजू में 2 digits हैं. इसका मतलब 7/100 और 0.02 इस डेसिमल के बाजू में भी 2 डिजिट्स हैं, यानी डिनोमिनेटर में 2 zeros आएंगे विथ 1, यानी 100. दैट मीन्स 2/100. नाउ एज यू कैन सी दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं. इसका मतलब हम कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर को, यानी न्यूमरेटर्स 7 एंड न्यूमरेटर्स 2. कौन ग्रेटर है, 7 और 2? करेक्ट, 7. इसीलिए हमारी साइन ग्रेटर देन की 7 की तरफ आएगी एंड दैट साइड 2/100 स्मॉलर हो जाएगा. अब ये जो फ्रैक्शन है ये जिस डेसिमल पॉइंट में अर्लियर था हमें उसी फॉर्म में दोबारा लिखना है. इट इज 0.07 और 2/100 को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन में था, दैट इज 0.02. और जिस तरीके से ये फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाता है उसी तरह डेसिमल की डिजिट्स ही ऑलरेडी ग्रेटर ही होगी. अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आवर ग्रेटर एंड smaller. Now it's turn to carry on with question B. But remember, as you go from 1000 to hundreds, the digits go on becoming greater and greater. That means from right to left. And if you go from left to right, यानी 100 से डेसिमल्स होते हुए अगर आप 10th, 100th और 1000 तक जा रहे होते हैं तो आपके जो डिजिट्स हैं वो स्मॉलर एंड स्मॉलर होते चले जाते हैं. सो लेट्स गो ऑन विथ क्वेश्चन C's सॉल्यूशन. 3 is 3. अगर हम 3 को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें सो 3 इज एट द पोजिशन ऑफ वंस और 0.8 is actually at the position of 1 digit decimal, right? Decimal point के बाजू में 1 digit है, इसीलिए नीचे 10 आएगा. Now we are going to compare tens और ones. आप देख सकते हैं 10th यहां पर आएगा और ones यहां पर आएगा. That means you are moving from 10th to ones, है ना? हम ऐसे नहीं जा रहे हैं. ओके, अगर आप ऐसे भी सोचो तो वंस है पहले, बाद में 10th है, तो ग्रेटर कौन हुआ, वंस हुआ या 10th हुआ? ऑफ कोर्स इस तरफ वाला ग्रेटर और इस तरफ वाला स्मॉलर, यानी हमारा 3/1 ग्रेटर हो गया और 8/10 स्मॉलर हो गया. अब हम इसका ओरिजिनल फॉर्म लिख लेते हैं जो हमने क्वेश्चन से इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था. हमें सेम उसे वापस डेसिमल डिजिट में आंसर करना है. इसका मतलब 3 is greater than 0.8 and this is our final answer. Let's move on to question D. That is 0.5 और 0.05. सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शंस में. So 0.5 is nothing but 5/10 और 0.05 is 5/100. आप फ्रैक्शंस को देख सकते हैं.
डिनोमिनेटर में एक तरफ 10th है और एक तरफ 100th है। सो 10th ग्रेटर होगा या 100th ग्रेटर होगा? करेक्ट, 10th ग्रेटर होगा। यानी जो 10th की प्लेस वैल्यू है वो ग्रेटर होगी 100th के प्लेस वैल्यू से। सो हमारी ग्रेटर देन की साइन 5/10 की तरफ आएगी। सो लेट्स पुट ऑन 5/10 इज ग्रेटर देन 5/100। अब हम इसे उसके ओरिजिनल डेसिमल डिजिट्स में लिख लेते हैं। दैट इज 0.5 is greater than 0.05 and this is our final answer. Now it's turn for question E. 1.23 is greater और 1.2 is greater। हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। सबसे पहले हम इन डेसिमल डिजिट्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। एज यू कैन सी कि डेसिमल डिजिट के बाजू में 2 डिजिट्स हैं, यानी डेसिमल के बाजू में 2 डिजिट्स हैं। डेसिमल के बाजू में एक डिजिट है 2 और दूसरी डिजिट है 3, यानी 2 डिजिट है। तो इस नंबर के नीचे क्या आएगा? 10 आएगा या 100 आएगा? करेक्ट, 100 आएगा, 2 zeros वाला। सो हम लिख लेते हैं विदाउट डेसिमल ऊपर के नंबर लिखे जाते हैं, यानी हम 1.23 को सिंपल फॉर्म में 123 में लिखेंगे, यानी ये हो गया 123 और नीचे हमने उसके 100 रख दिया बिकॉज हमने डेसिमल निकाल दिया है। और अब हम 1/2 को लिखेंगे। अगर हम इसका डेसिमल निकाल देंगे तो 12 हो जाएगा। डेसिमल निकालने के लिए आपको डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 देना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि डेसिमल के बाजू में कितने डिजिट थे। डेसिमल के बाजू में 1 डिजिट थी, इसलिए हम 1 0 देंगे, यानी ऊपर आएगा 12 और नीचे आएगा 10। अब कंपेयर करते हैं। ये रही 100th की वैल्यू है और ये 10th की वैल्यू है। हु इज ग्रेटर? 100th इज ग्रेटर और 10th इज ग्रेटर? करेक्ट, 10th इज ग्रेटर। तो 100th क्या हुआ? स्मॉलर। तो अब हम इस तरफ स्मॉलर देन की साइन लगाएंगे। सो लेट्स डू इट। 123/100 is less than 12/10. Now it's turn for writing the original form. इसका ओरिजिनल फॉर्म था 1.23 और 12/10 का ओरिजिनल डेसिमल फॉर्म था 1.2, इसलिए ग्रेटर देन की साइन एग्जैक्टली 1.2 की तरफ आएगी। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन F. Question F has decimal that is 0.099 and 0.19. तो हम सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में लिख लेते हैं विद डिनोमिनेटर। जैसे ही हम इसका डेसिमल निकालेंगे हमारे पास सिर्फ वैल्यूएबल नंबर्स रह जाते हैं 99। अब इसके नीचे हम क्या डालें? 10, 100 या 1000? हमें डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? तो ये डेसिमल के बाजू के डिजिट्स काउंट कर लीजिए। डेसिमल के राइट साइड में ही काउंट किए जाते हैं। डेसिमल के लेफ्ट साइड में हम कभी डिजिट्स काउंट नहीं करते। हमेशा हम नीचे 10, 100 या डालने के लिए राइट साइड के ही काउंट करते हैं, क्योंकि हमारे डेसिमल के राइट साइड की वैल्यू ही डिनोमिनेटर में आती है। तो इसीलिए डेसिमल के बाजू में हमारे पास 1, 2, 3 डिजिट्स हैं, यानी 99 के नीचे 3 zeros आएंगे विथ 1, यानी 1000th वैल्यू है ये। और अब इसकी बारी। डेसिमल की बाजू में 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट के लिए 2 0 आते हैं, यानी ये 1 के साथ में 2 0 100th की वैल्यू है 19/100। नाउ कंपेयर 1000th इज ग्रेटर और 100th इज ग्रेटर। 1000 इज हियर, 100th इज हियर। हम अगर ऐसे देखें तो 100th ग्रेटर है, ऐसे देखें तो 1000th स्मॉलर है ना? ऐसे देखें तो 100th ग्रेटर और 1000th स्मॉलर है, राइट? हम अगर ऐसे बढ़ते हैं तो 1000 स्मॉल हो जाता है, 100th ग्रेटर हो जाता है। और अगर ऐसे बढ़े तो क्या 100 स्मॉलर हो जाएगा? नो, वी गो ऑन बिकमिंग स्मॉलर, यानी 100 हमेशा बड़ा ही रहेगा और 1000 हमेशा छोटा ही रहेगा। अंडरस्टूड? इट इज नॉट लाइक दैट कि आप ऐसे देखो तो ये बड़े हो जाएंगे और ऐसे देखो तो ये उल्टा सोचने का नहीं। हम वैल्यूज को देखते हैं कि 1000 एक ही कंडीशन है भाई, इस तरफ वाले नंबर्स छोटे ही होंगे और जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट साइड बढ़ते जाएंगे हम ग्रेटर होते जाते हैं।
अंडरस्टूड. सो हमारा 1000th वैल्यू क्या होगा? लेस देन की साइन लगानी पड़ेगी, बिकॉज 99 अपॉन 1000th वैल्यू इज लेस देन 19 अपॉन 100th वैल्यू. अब हम इसके ओरिजिनल फॉर्म लिख लेते हैं. 99 अपॉन 1000 का डेसिमल फॉर्म था 0.099 और 19 अपॉन 100 का ओरिजिनल फॉर्म था 0.19. सो विच वन इज लेस? 0.099 was less than 0.19. Final answer. Now let's move on to question G. 1.5 और 1.50 इन दोनों के बीच कंपैरिजन करना है. हम सबसे पहले क्या करेंगे? करेक्ट, हम डेसिमल डिजिट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. यानी हम 1.5 का डेसिमल निकाल देंगे और नीचे आएगा 10. नाउ हम 1.50 का भी डेसिमल निकाल देंगे और आएगा 150 अपॉन 100. नाउ हम लास्ट का 0 चाहे तो ओमिट कर सकते हैं ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए. ये आप तभी करना जब एंडिंग में 0 हो, और आप कट कर सकते हैं 10 विथ 10 इन द न्यूमरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर. जब ऐसा आप कर सको, ऐसा करने का एक ही मकसद होना चाहिए, ओनली वन इंटेंशन, कि नीचे के जो डिनोमिनेटर्स हैं हम सेम करते हैं. ठीक है. अब एक 0 कट हो जाने से 15/10 और यहाँ का 15/10 सेम हो गया. राइट, डिनोमिनेटर सेम हो गए. अब अगर डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं. न्यूमरेटर में नंबर सेम हैं 15 and 15. सो दोनों कैसे हुए? इक्वल. Now it is turn for us to write the original decimal form of this, that is 1.5, and the original decimal form of this, that is 1.50. Actually both are same, they both are equal. Now the last question is H. Here the number is 1.431 और 1.490. दोनों को कंपेयर करना है. राइट. अब आप देखिए कि यहां पर भी 3 डिजिट्स है और यहां पर भी 3 डिजिट्स है, यानी दोनों की जो दोनों हैं वो 1000th वैल्यू में है. राइट. सो लेट अस टर्न दिस इनटू अ फ्रैक्शन. अब हम इसके जीरोस कट नहीं करेंगे. वाई? देखो एंडिंग में 0 यहां पर भी है, एंडिंग में 0 यहां पर भी है. जिस तरह अर्लियर हमने एक 0 को ओमिट कर दिया था, यहां पर भी कर सकते हैं. लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर्स को सेम करना है. अब अगर यहां पर एक 0 ज्यादा था और कट कर दिया तो इंटेंशन बिल्कुल पूरा होता है, डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं और कंपैरिजन इजी हो जाता है. लेकिन अगर आप अब यहां पर 0 कट करोगे ना तो ये 1000th वैल्यू हो जाएगी और ये 100th वैल्यू हो जाएगी. कंपैरिजन तो आप तभी भी कर सकोगे कि 1000th बड़ा है या 100th बड़ा है. डेफिनेटली 100th ही बड़ा आएगा, यानी दिस इज ग्रेटर. अगर आप 0 कट कर दोगे तभी भी आंसर सेम आएगा, कट नहीं करोगे तभी भी आंसर सेम ही आएगा. सी, अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, 1000 हैं. हम ऊपर के नंबर्स काउंट करते हैं या कंपेयर करते हैं. ये है 1431 और ये है 1490. आप ही बताइए कौन सा नंबर ग्रेटर है? फर्स्ट 2 डिजिट तो सेम है 14. सो उसको अभी फिलहाल नजरअंदाज कीजिए, इग्नोर कीजिए. लास्ट के 2 डिजिट्स देखिए 31, 90. विच वन इज ग्रेटर? करेक्ट, 90. तब हम ये पूरा ही नंबर को सोच लेते हैं कि अब 1431 बड़ा है या 1490 बड़ा है. करेक्ट, 1490 बड़ा है. यानी अब हम रेडी हैं हमारी ग्रेटर देन की साइन 1490 पर लगाने के लिए. नाउ इसका ओरिजिनल फॉर्म लिख लेते हैं. यानी इस फ्रैक्शन का ओरिजिनल फॉर्म क्या था? करेक्ट, 1.431. और 1490 अपॉन 1000 का ओरिजिनल फॉर्म क्या था? करेक्ट, 1.490. तो ग्रेटर देन की साइन किस तरफ आएगी? करेक्ट, 1490 की तरफ आएगी. एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर. Students, from question A to H, I had explained it to you, all the sums. Now the remaining I,
and J questions are homework for you to be done. Students, with the video, I am sending the PDFs. You have to complete your books on time so that whenever the school asks you to submit your books, you must be ready with your ready work. Thank you students for watching the video. We are going to meet soon with new exercise 8.4 in another video. Till then, have a nice day.